بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بایولوجی لیکچر 8 ملٹی سیلولر آرگنائزیشن. دیکھیں اسٹوڈنٹس، ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ وٹ آر دی لیولز آف آرگنائزیشن، کہ اگر ایک جاندار ایک سیل پہ مشتمل ہے یا ایک سیل کا بنا ہوا ہے، اس ایک سیل کے بننے تک وہ کن کن لیولز سے پہلے ہو کے پھر یہ ایک سیل بنا. اور کچھ جاندار پھر ایسے ہیں کہ دیٹ آر ملٹی سیلولر، ایک سے زیادہ سیل، اور سیل پھر مل کے اگر ٹیشو رکھتے ہیں یا پھر آرگن بناتے ہیں یا پھر ایک سسٹم بناتے ہیں اور مل کے پھر پورا ایک انڈیویجول آرگینزم بناتے ہیں. تو آیا اس ایک سیل کے بعد بھی ایسے سٹیپ ہے کہ ان کے بعد ایک کمپلیٹ کمپلیکس فنکشنل آرگینزم بنے گا؟ جی ہاں ہے. دیٹ از ملٹی سیلولر آرگنائزیشن. آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ایک سے زیادہ سیلوں پہ مشتمل جاندار، صرف ایک سے زیادہ سیل نہیں، وہ جا کے اگر ٹیشو بنائے، ٹیشو پہ جا کے آرگن بنائے، آرگن پہ جا کے آرگن سسٹم بنائے، اور پھر جا کے ایک مکمل جاندار کی تشکیل ہو. ان لیولز یا سٹیپس میں ہم ملٹی سیلولر آرگنائزیشن ڈسکس کرتے ہیں. تو اس کو ڈیفائن ہم یوں کریں گے: دی آرگنائزیشن، آرگنائز کرنا، ترتیب دینا یا ترتیب میں لانا. اب ایک انسانی جسم کے اندر ہر ایک آرگن اور سسٹم ایک ترتیب کے ساتھ لگا، جڑا اور کام کر رہا ہے. تو the آرگنائزیشن یا کوآرڈینیشن، آپس میں سارے کے سارے سیلز، اعضاء، آرگنز اور ٹیشو جڑے ہیں. ایک بھی سیل دوسرے کے مدد یا کوآرڈینیشن کے بغیر کام نہیں کر سکتا. ایک بھی آرگن جسم میں دوسرے آرگن کے بغیر فنکشنل نہیں ہے. جسم میں ایک آرگن کام چھوڑ دے تو پورا جسم ناکارہ بن جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے ایک سیل دوسرے کے ساتھ مل کے کسی کام کو اچھے طریقے سے انجام دیتا ہے. تو the آرگنائزیشن یا کوآرڈینیشن آف سیلز، سیلوں کا اچھے اور بہترین طریقے سے مل کر ٹیشو بنانا، یا ٹیشوز کا مل کر آرگنز بنانا، آرگنز کا مل کر آرگن سسٹم بنانا، اور آرگن سسٹمز کا مل کر ایک انڈیویجول فنکشنل آرگینزم بنانا. ایک واحد مکمل بہترین کام کرنے والا جاندار بنانا ملٹی سیلولر آرگنائزیشن. اور یہ بھی لیولز آف آرگنائزیشن میں سے ہے. لیکن جو پچھلے دو ٹاپک ہم نے لیولز آف آرگنائزیشن ڈسکس کیے تھے، لیکن سیلولر لیول تک، جہاں پہ سیل آ کے بنا تھا اس لیول پہ ہم نے سیلولر آرگنائزیشن کو اینڈ کیا تھا. یونی سیلولر آرگنزم اس لیول تک ہے. لیکن جب ملٹی سیلولر آرگنائزیشن کی بات آئی تو مقصد یہ ہے کہ وہ جاندار زیادہ سیلوں پہ مشتمل ہے، اس کے جسم میں ٹیشوز ہیں، آرگنز ہیں، آرگن سسٹم ہے. تو پھر یہ کیسا فنکشنل ہو جاتا ہے اور کیسا انڈیویجول ایک کوآرڈینیٹڈ آرگنائزیشن بناتا ہے. دیٹ از آور ٹاپک. تو سیل کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ سیل is the structural and functional unit of life. Functional unit of life یا living. یہ لائف یا living کے بنانے کی بنیادی اکائی ہے جو اسے جسم کو بناتی ہے. اچھا جی، تو پھر سیل میں پروکیریوٹک سیل ہے، یوکیریوٹک سیل ہے. اس کے اگلے ٹاپک میں ہم کمپیریزن کرنے جا رہے ہیں، ان کو ڈیوائڈ کریں گے. اچھا، سیل کے بعد دی نیکسٹ لیول از ٹیشو لیول. اس لیول کو ہم ٹیشو لیول کہتے ہیں. ٹیشو لیول کیا ہے؟ 2 اور more than 2، دو یا دو سے زیادہ، 2 or more than 2 cells combined together، ملتے ہیں. 2 or more than 2 cells combined together to perform a specific function، ایک مخصوص کام کریں گے. اس کو ہم کہتے ہیں ٹیشو. ٹھیک ہے بھائی، کہ ٹیشو لیول دوسرا لیول ہے. اس ملٹی سیلولر آرگنائزیشن کے سٹیپس میں
द टिश्यू लेवल इज द सेकंड लेवल, दूसरा लेवल है। इस पे क्या होता है, दो या दो से ज्यादा सेल्स मिलते हैं और वो एक ही मखसूस काम अंजाम देंगे या करेंगे, उसे हम टिश्यू कहते हैं। हाँ, ऐसे ना हो कि जब दो या दो से ज्यादा सेल मिले हो और हर कोई अपना काम कर रहा हो, वो टिश्यू नहीं कहलाता। तो जब दो या मोर देन टू सेल्स या दो से ज्यादा सेल्स मिलते हैं इकट्ठे और वो अंजाम देते हैं या करते हैं एक मखसूस काम, एक ही मखसूस काम, उनका काम एक होगा। बेशक सेल 2 हो, 10 हो, 100 हो, 50 हो, जितने भी हो, लेकिन वो सारे मिलके अगर एक ही काम करेंगे इज कॉल्ड एज टिश्यू, उसको हम टिश्यू कहते हैं। नाउ टिश्यू इज ऑफ 2 टाइप्स। टिश्यू फिर हमारे पास 2 टाइप्स या अकसाम में है। फर्स्ट इज कॉल्ड एज सिंपल टिश्यू, फर्स्ट इज called as simple tissue, second is known as compound या complex tissue, compound या complex tissue। दूसरे टिश्यू को हम कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। देखिए भाई, टिश्यूज आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 अकसाम के हैं, सिंपल टिश्यू, कंपाउंड टिश्यू। टिश्यू है इसका मतलब है ज्यादा सेल है, काम एक ही होगा तभी टिश्यू कहलाएगा। लेकिन सिंपल टिश्यू में all cells are same, सारे के सारे सेल्स एक ही जैसे होंगे। कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टिश्यू में all cells are not same but the different types of cells आती है। यहाँ पे सारे सेल्स एक किस्म के नहीं होते, यहाँ पे सारे सेल्स एक किस्म के होंगे। एक जैसे सेल्स मिलके एक ही काम करेंगे, सिंपल टिश्यू। मुख्तलिफ किस्म के सेल मिलके एक ही काम करेंगे, दैट आर कॉल्ड एज कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो सिंपल टिश्यू, व्हेन वन टाइप ऑफ सेल्स कंबाइन to form a specific function, is called, इसको भाई हम कहते हैं सिंपल टिश्यू, सादा टिश्यू। सादा या सिंपल इस वजह से नहीं कि इसमें सेल कम है, नहीं, इस मुताबिक ये सेल रखता होगा, लेकिन इसके सारे सेल्स एक जैसे, इनमें सारे सेल्स एक जैसे नहीं होते, बल्कि अलग-अलग किस्म के सेल्स इसमें होंगे। तो सिंपल टिश्यू डिफाइन कर लिया। नेक्स्ट इज कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टिश्यू, व्हेन more than one type of cells, one cell नहीं, one type of cell, when more than one type of cells combine to form a specific function is called, इसको हम कहते हैं कंपाउंड या इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। देखिए, when one type of cells combine together, combine to form a specific function is called simple tissue. When more than one type of cells combine to form a specific function is called a compound या complex tissue. अच्छा, उसके बाद the third level is tissue के लेवल के बनने के बाद there is organ level. तीसरा हमारे पास लेवल इस लेवल के बाद स्टार्ट होता है, that is organ level. इस लेवल पे ऑर्गन जाके बनते हैं सिंपल और कंपाउंड टिश्यू से। ये मिले थे सेल से, एक से ज्यादा सेल मिले तो उन्होंने टिश्यू बनाया, उनका एक मखसूस काम था। एक जैसे सेल है तो सिंपल टिश्यू, मुख्तलिफ किस्म के सेल हैं तो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टिश्यू। नेक्स्ट इज ऑर्गन लेवल। ये सिंपल और कंपाउंड टिश्यू अब मिल के अगर कोई ऑर्गन बनाते हैं, अब भी दैट हैज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, और वो एक मखसूस काम करता हो, एक खास काम, एक ही काम करता हो, ये वाले या ये वाले टिश्यूज मिलकर, दैट इज कॉल्ड एज, उसको हम कहते हैं ऑर्गन। when different और सेम या एक जैसे
मुख्तलिफ या एक जैसे टिश्यूज कंबाइन मिलते हैं टू परफॉर्म और वो करें a specific function एक मखसूस काम is called, उसको हम कहते हैं ऑर्गन। देखिए भाई, हमारे जिस्म में आप दिल को लें, जिगर को लें, मैदे को लें, गुर्दों को लें, दिमाग को लें, ये ऐसे मखसूस ऑर्गन है कि हर एक का एक काम मुख्तस है। ऐसा नहीं कि वो दिल वाला ऑर्गन आंख ऑर्गन जैसे काम भी कर सकता हो, जिगर आपके इस दिल के गुर्दे ऑर्गन जैसा काम भी कर सकता हो, गुर्दे आपके दिल जैसा नहीं, उनका काम इज स्पेसिफिक, मखसूस है। बेशक उनमें टिश्यू एक किस्म का हो और या मुख्तलिफ कंपाउंड या कम्प्लेक्स टिश्यू हो, लेकिन उस ऑर्गन का फंक्शन स्पेसिफाई होगा। तो हम कैसे बयान करेंगे? व्हेन, जब डिफरेंट या सेम टिश्यूज combine to perform a specific function is called organ, इसको हम organ कहते हैं। तो organ plants में भी है, animals में भी है। दिल organ है, kidney organ है, stomach organ है, liver organ है, stem organ है, roots organ है। These all are examples of organs। ये ऑर्गन्स की ये मुख्तलिफ अक़साम या एक किस्म के टिश्यू से बने हो, लेकिन काम ये एक मखसूस अदा करेंगे या करेंगे, वो उसको स्पेसिफाई करेगा। नेक्स्ट इज भाई, नेक्स्ट लेवल में हम ऑर्गन सिस्टम को डिस्कस करते हैं। ऑर्गन सिस्टम, देखें जो बॉडी जितनी कॉम्प्लेक्स होती जाती है उसके अंदर सिस्टम्स को उतना फाल होना पड़ता है। तो अब ऑर्गन लेवल में ऑर्गन बने, लेकिन उन ऑर्गन्स को भी साथ मिलकर अगर एक पूरे जिस्म को चलाना है, सो दे हैव टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। उन्होंने ऑर्गन सिस्टम बनाना होगा। ऑर्गन सिस्टम क्या है? जब मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलकर एक मखसूस काम करेंगे, फिर एक मखसूस काम। देखिए हमारा, अगर मैं आपको यह समझाऊं कि ये पूरी बॉडी एक सिंगल यूनिट है, एक यूनिट है, सारे ऑर्गन और सिस्टम इसी बॉडी, एक ही बॉडी के लिए काम कर रहे हैं, तो स्पेसिफाई हुआ। यूं ही ऑर्गन सिस्टम में भी मुख्तलिफ ऑर्गन मिलकर अगर बेहतरीन फंक्शन करते हैं और एक मखसूस काम अंजाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। तो इसको हम डिफाइन यूं करेंगे, व्हेन डिफरेंट ऑर्गन्स, व्हेन जब डिफरेंट ऑर्गन्स, मुख्तलिफ ऑर्गन्स function together specifically जब मुख्तलिफ ऑर्गन मिलेंगे और उनसे एक मखसूस काम होगा, वह वो एक मखसूस काम करेंगे, will form, वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, वो जाके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। ईजी फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अगर डाइजेस्टिव सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी सिस्टम, कौन सा सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ये सारे सिस्टम्स हैं, ऑर्गन के सिस्टम है, इनमें मुख्तलिफ ऑर्गन है, साथ ही मिलके वो काम करते हैं डाइजेशन के लिए, मिलके काम करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, मिलके काम करते हैं एक्सक्रीशन के लिए। तो अगर उनके जिस्म में डाइजेशन होना है तो ये सारे ऑर्गन मिलके एक ही काम करते हैं, डाइजेशन, और ऑर्गन सिस्टम बना डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा ऑर्गन सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, मुख्तलिफ ऑर्गन मिलके उसका एक ही काम रेस्पिरेशन उसे कराते हैं, दैट इज कॉल्ड। अब डाइजेशन के एग्जांपल है, आपका माउथ इन्वॉल्व है, टीथ इन्वॉल्व है, एसोफेगस इन्वॉल्व है, स्टमक इन्वॉल्व है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, लिवर, ग्लैंड्स, ये सारे ऑर्गन मिलके एक ही काम आपका डाइजेशन कराते हैं। तो मुख्तलिफ ऑर्गन काम एक ही कराना, डाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम, उसको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। द लास्ट इज, आखिर में जो लास्ट वाला है, दैट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म।
इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म लेवल, इस लास्ट लेवल को हम इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म लेवल, ये वो लेवल है जिसपे ऑर्गन सिस्टम सारे मिलके एक ही सिस्टम को चलाते हैं, ये एक ही सिस्टम या जानदार के लिए काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म लेवल। इस लेवल पे जाके एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की तकमील होती है। अब तक कंप्लीट नहीं था कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये लेवल्स हुए, सेल्स ने मिलकर फिर टिश्यू बनाया, फिर मुख्तलिफ अक़साम के टिश्यू बनाए, फिर उन्होंने ऑर्गन बनाए, फिर ऑर्गन ने साथ मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाए, उन ऑर्गन सिस्टम में मुख्तलिफ ऑर्गन उसका एक मखसूस काम कराते हैं। लास्ट में ये सारे सिस्टम जब मिल जाते हैं तो उसकी एक पूरी यूनिट या बॉडी या उस जानदार के एक ही सिस्टम को चलाते हैं, ये फंक्शनल बनाते हैं, एंड दैट इज द एंड ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसको डिफाइन करते हैं इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म। एट दिस लेवल एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एक पूरा मुनफरिद जानदार इस फॉर्म बनता है ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम के मिलने के बाद। ईजी फॉर एग्जाम्पल, कौन है इंडिविजुअल? अ ह्यूमन इज अ इंडिविजुअल, एक इंसान एक इंडिविजुअल है। इन सारे स्टेप्स और सेल से पहले जितने स्टेप्स हैं, इनके बाद ये ऐसा एक फंक्शनल ऑर्गेनिज्म बना। गोट लें, शीप लें, और ऐसा आपको जितना भी कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स मिलते हैं, all they have that organization, coordination of cells till the formation of individual organism is called as, इसको हम कहते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन की सारी डिटेल आई, तो इसको आप बयान करेंगे। वैसे टॉपिक तो थोड़ा सा इसको हमने तकसीम किया है कि सेल से सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके सेल तक एक बार में हमने डिस्कस किया, और सेल से लेके इंडिविजुअल तक ये दूसरी बात है। ऑल दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वहां सेल के बनने तक यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन था, और सेल के बाद एक कॉम्प्लेक्स जानदार के बनने तक दैट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट लेवल में हम अब एक इंडिविजुअल बना, वो फर्दर एक सोसाइटी में किस किस्म के माशरे में रहकर क्या कॉम्बिनेशन और बना सकता है, उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।